फ्रेंड्स, नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। फ्रेंड्स, these days we are doing a joint study of Ashtavakra Gita. This is our 12th video on the same, 17-01-12। अष्टावक्र गीता की ग्रेटनेस यह है कि he proposes direct realization of truth. Ashtavakra does not assert on any rational defense for the same. Ashtavakra is clear. Self alone is real and all the non-self is appearance. The false identification of the non-self with the self is the only cause of bondage. Thus, bondage is due to ignorance of the real nature of the self, and the freedom is attained as soon as the ignorance disappears on the dawn of self-realization. Ashtavakra again and again makes it clear that disappearance of ignorance automatically entails the disappearance of non-self, which is its own product. Friends, the fact is that the existence of the other is always a cause of worry for us. This presence of the other is the main cause of all unhappiness in us. When the self is realized as the only reality, the distinction and differences vanish and the freedom is attained. The fact is realized that freedom is the very essence of the self, and the loss of freedom is only the case of forgetting. Please recall to the question from Janak, how freedom can be achieved. The answer given by Ashtavakra is simple. Ashtavakra says, know the self as the pure consciousness, the unaffected witness of the phenomenal world, and you will be free. The reality of the self is free, and the freedom is not to be attained, it is to be discovered, it is to be realized. This chapter is all about freedom from bondage. This is about Ashtavakra's definition of मुक्ति. फ्रेंड्स, अभी अभी अष्टावक्र जी ने जनक को आत्मज्ञान के स्वरूप के बारे में बताया है। अब अष्टावक्र जी मुक्ति के स्वरूप तथा उपाय के बारे में बताते हैं। 0104 यदि देहं पृथक् कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि. If you detach yourself from the body
and rest in intelligence, you will at once be happy, peaceful, and free from bondage. Friends, this detach यहाँ पे है एसेंस ऑफ अद्वैत साधना. By identifying the self with the body which is in itself non-self, we ascribe to self the limitations of the body and we suffer all kinds of misery. And friends, give importance to this at once. That is, the very moment the self is known as distinct from body, because the self is never really affected by body and mind, the glory is found. दोस्तों, अष्टावक्र जी क्या बता रहे हैं? हे जनक, यदि तू देह तथा आत्मा को विवेक करके अलग अलग जानेगा और आत्मा के विषय में विश्राम करके चित्त को एकाग्र करेगा, तो तू इस वर्तमान में ही मनुष्य देह के विषय सुख तथा शांति को प्राप्त होगा, अर्थात बंधन मुक्त होगा और कर्तापना, भोक्तापना आदि अनेक अनर्थों से छूट जाएगा. फ्रेंड्स, अष्टावक्र का कथन स्ट्रेट है. जनक, जब तू देह से आत्मा को पृथक विचार करके और अपने आत्मा में चित्त को स्थिर करके स्थिर हो जाएगा, तब तू सुख और शांति को प्राप्त होगा. जब तक परस्पर के अध्यास का नाश नहीं होता, जब तक चिद जड़ ग्रंथि का नाश नहीं होता, तब तक ही जीव बंधन में है. जिस समय अध्यास का नाश हो जाता है, उस समय ही जीव मुक्त हो जाता है. जनक, शिव गीता में ये साफ साफ बताया गया है, मोक्ष का किसी लोकांतर में निवास नहीं है और न किसी गृह या ग्राम के भीतर मोक्ष का निवास है, किंतु चिद जड़ ग्रंथि का नाश ही मोक्ष है. मतलब जड़ चेतन का जो परस्पर अध्यास है, बताया ना, ये बुद्धि जो जड़ है, इसको मीमांसा दर्शन वाले चेतन समझते हैं. ऐसे उस अध्यास के जो जड़ अंतःकरण के कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि धर्म हैं, वे आत्मा में प्रतीत होते हैं, एवं आत्मा के जो चेतना आदि धर्म है, वो भी अग्नि में तपाए हुए लोह पिंड की तरह अंतःकरण में प्रतीत होने लगते हैं. एग्जाम्पल दिया जाता है शिव गीता में, जब लोहे का कोई पिंड अग्नि में तपाया हुआ लाल हो जाता है और जब हाथ लगाने से वह हाथ को जला देता है, तब लोग क्या कहते हैं? देखो, यह अग्नि कैसा गोलाकार है.
लोहा कैसा जलाता है, जबकि लोहे का धर्म जलाने का नहीं है और गोलाकार धर्म अग्नि का नहीं है, लेकिन परस्पर दोनों का तादात्म्य अध्यास होने से अग्नि का जलाना रूप धर्म लोहे में आ जाता है और लोहे का गोलाकार धर्म अग्नि में। जनक एकदम ऐसे ही अंतःकरण के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से जब आत्मा के चेतन आदि धर्म अंतःकरण में आ जाते हैं और अंतःकरण के कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म आत्मा में चले जाते हैं, तब पुरुष अपने आत्मा को कर्ता और भोक्ता मानने लग पड़ता है और उसी से जन्म मरण रूपी बंधन को प्राप्त होता है। जनक, यह है आत्मज्ञान की महत्वता, यह है आत्मज्ञान को समझने की तीव्र आवश्यकता। जब मानव आत्मज्ञान होने पर अपने को अकर्ता, अभोक्ता, शुद्ध और असंग जान जाता है और कर्तृत्व आदिक अंतःकरण का धर्म समझ जाता है, तब स्वयं साक्षी होकर अंतःकरण का भी प्रकाशक बन जाता है और तभी उसका अध्यास नाश हो जाता है। इस अध्यास के नाश का नाम ही मुक्ति है। इसके अतिरिक्त मुक्ति और कोई वस्तु नहीं है जनक। दोस्तों, इस श्लोक में ये देह पृथक कृत्यम और अधुनैव, ये दोस्तों कैच वर्ड्स हैं। दोस्तों, आपको ये देह पृथक कृत्य के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। हमने अपने बहुत सारे वीडियोस में जगह जगह इसको लिखा तो है, बताया तो है, लेकिन अब तो ये एक श्लोक के रूप में अष्टावक्र ने जनक को बता दिया और जनक आप ही हो दोस्तों, तो इसको तो आपको समझना ही पड़ेगा। जो हमने ये तुरिया के बारे में, साक्षी के बारे में, विटनेस के बारे में बार बार जाना है, पढ़ा है, जो आपकी समझ आ चुकी है, दोस्तों जरा उसकी अंडरस्टैंडिंग को रिफ्रेश कर लो और फिर ये देह पृथक कृत्य के बारे में सोचो, समझो। बहुत बार ओपन सीक्रेट ने इसको टच किया है। जैसे एक तो था कि ये पूरी दुनिया के मिरर में आप अपना इमेज देखते हो, तो एक तो आप हो गए और एक जो पूरे दुनिया में आपके पेरेंट्स, आपके बॉसेस, आपके बच्चे, आपकी स्पाउस या व्हाटएवर, पूरी दुनिया में रिएक्शंस मिलते रहते हैं आपकी प्रेजेंस के, उसके हिसाब से आप स्वयं को जानते रहते हो। तो एक तो आप हो गए और एक आपका वो इमेज हो गया। क्या बताया गया है कि ये दोनों ही अनरियल हैं, इन दोनों में से कुछ भी सच नहीं है। सच तो वो है जो इन दोनों को देखता हुआ साक्षी है, वही आप हो असली में, वही विटनेस है असल में, वही ब्राह्मण तत्व है आपका। फिर दोस्तों कितनी बारी बताया गया ये नदी के बारे में। नदी बह रही है,
अपने साथ सब कुछ लेती हुई पूरे जीवन को, पूरी जीवनचर्या को, पाप, सुख, दुख, भोग, सब कुछ लेती हुई बहती चली जा रही है। या तो आप उसका जो बेड है वो बन जाओ, या रिवर का बैंक बन जाओ और चुपचाप उसको देखो। आपके सामने जीवन चला जा रहा है, चला जा रहा है। Do not react, do not wait, do not say it is good or it is bad. Do not think कि अब ये हुआ है तो इसके बाद वो होगा. Just keep on watching, keep on observing. तो एक इस एग्जाम्पल को बहुत डिटेल में बहुत बार हम लोगों ने देखा है. एंड थर्ड, दिस एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रीट लाइट. लाइट तो दोस्तों बहुत प्रकाश, बहुत बार बहुत तरह से हम समझते हैं. ये एनलाइटनमेंट होना, ये जागृत होना, ये ब्राह्मण को समझना, ये चेतना को समझना, वैसे भी समझ में आता है कि स्ट्रीट लाइट नीचे से गुजरने वाले हर एक यात्री को, हर एक पथिक को, हर एक आवागमन करने वाले को, जीव को, जंतु को देखता रहता है, देखती रहती है ये लाइट. उसके दुख सुख, चाहे शव की यात्रा हो, चाहे शादी की बारात हो, ऑब्जर्व करती रहती है. वो है दोस्तों साक्षी. और फिर अष्टावक्र गीता में दोस्तों जनक's ड्रीम, बोथ द किंग जनक in the awake stage and the helpless king in the dream stage. These both are unreal. यही बताया था ना अष्टावक्र ने. The real is the one witnessing these both. जनक वो एक सच है, इन दोनों में से कुछ भी सच नहीं है. And friends, probably in the last video also we covered it up. One is the entire phenomena of the world. दृश्य. होड़ लगी पड़ी है खुद को दिखाने की, सजाने की, दृश्य बन जाने की, कि सब हमको देखें, हमको वे करें, हमने अचीव किया है, हम ऐसे हैं. पॉजिटिव मैनर में या नेगेटिव मैनर में, अपने ऊपर हमने कुछ ओढ़ लिया है, अपने सत्य से दूर तो हो ही गए. एंड अनदर इज दर्शक. दिस एग्जिस्टेंस ऑफ ए मेगा काउंट दैट सीज व्हाट इज बीइंग शोन. दृश्य है तो दर्शक है, बस देख रहे हैं और कुछ सोच ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं है. दृश्य वाले दिखा रहे हैं और दर्शक वाले देख रहे हैं. बस जीवन निकलता चला जा रहा है. दर्शक को दृश्य बनने का कोई शौक नहीं है, उतनी हिम्मत ही नहीं है, उतनी लगन ही नहीं है, उतना काम करना ही नहीं है. और दृश्य वाले को सच से कोई मतलब नहीं है. ऐसा है ये जमाना, ऐसे है हम दो. लेकिन दोस्तों हमारी परंपरा, भारत की जो हेरिटेज है, इट टीचेस अस टू बी द सीयर which sees these both. Friends, please know the greatness of our Vedanta. Please know that the acceptability of Vedanta
is for the reasons that it professes what has been seen by our seers. Not only that, Vedanta allows reason and it remains open for the acceptability for any modernization. It does not allow even the subtlest of the radicalism. Friends, in certain videos we have touched this, but I request you that you must have your own experimentations of this देह पृथक कृत्यम. दोस्तों, आप सो रहे हो. सोने से पहले 3-4 मिनट या शुरू में बहुत कम समय के लिए, या फिर सुबह सुबह जागने के बाद, अब अपने बिस्तर पे हो, नींद खुली, थोड़ा सा वक्त दीजिए दोस्तों अपने लिए, अपने ऊपर, और इस देह पृथक कृत्यम को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों. आप सो के उठे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से जागे नहीं हैं. शरीर आपका जैसे सो ही रहा है. दूर कुछ आवाजें आ रही हैं, नॉर्मल घर की आवाजें. Whatever. Don't leave the bed. Do these short experimentations of separating your body from your self, your true self, that witness. Observe various situations and visualize the substance. Slowly see if it carries to your work routine also. मतलब सुबह दिन में आपने एक्सपेरिमेंट्स किए दोस्तों, और फिर पता नहीं कितने समय के बाद ये एक्सपेरिमेंट्स आपने अपने कैरी कर लिए इन योर रूटीन वर्क्स आल्सो. कहीं कहीं एट एप्रोप्रिएट स्टेशंस. सबसे आसान होगा ये बेड के अलावा जब आप रिलैक्स कर रहे हो, आप अपना फेवरेट टीवी शो देख रहे हो, या आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुन रहे हो. ऐसी सिचुएशंस में जब आप कंफर्टेबल हो. आज तो दोस्तों हम बहुत इवॉल्व हैं, बिल्कुल समय नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर आपको ये देह पृथक कृत्यम करना है, समझना है, अष्टावक्र की इस मुक्ति, लिबरेशन, मोक्ष की तरफ कदम उठाना है रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक ही रास्ता है दोस्तों हम लोगों के लिए. तो ये एक्सपेरिमेंट आपको कर लेना चाहिए. कभी फोकस कर रहे हो उस टीवी शो के ऊपर और कभी फोकस कर रहे हो अपने ऊपर. दोनों को आप ऑब्जर्व कर रहे हो. करते रहो दोस्तों, कुछ होता रहेगा. डोंट बॉदर. एक दोस्तों मोमेंट, एक समय आएगा जब आपको यह समझ में आने लग पड़ेगा कि जब आप खुद को, सेल्फ को, स्वयं को ऑब्जर्व कर रहे थे, उस समय जो आप सुन रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे, वही आपको समझ में आया, वही आपने सुना, वही आपने देखा. उसकी एग्जैक्टनेस बहुत अलग लेवल की थी दोस्तों. Why? Because that time you were focusing on the listener, on yourself. तो उसका जो मेकिंग अप है, उसकी जो पूरी इंद्रियों की, बॉडी की पूरी जो माइक्रो व्यवस्था है, वो जो सुन रहा है, वो जब आपने रिकॉर्ड किया, देखा, तो वही आपका ज्ञान है.
जो सुना रहा है, जो बता रहा है, वो तो कोई अलग है। उसका और सुनने वाले का मैच तो होना बहुत ही 1 मिलियन से भी ज़्यादा $1 बिलियन क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको बहुत 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 हेल्प करेगा। होगा दोस्तों बहुत क्षणिक, एक मोमेंट के लिए भी अगर हो जाए तो खुद को भाग्यशाली समझना और फिर आप इसमें आगे बढ़ पाओगे। इट इज ओनली व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग योर सेल्फ, when you are listening and seeing the exact what is being delivered. And friends, that is the magical vertex of your life. और दोस्तों होगा ये उसी मोमेंट, अधुनैव, उसी समय, as quick as if it is a just start. It is this and that both at the same moment. The gap is less than a moment. It is all simultaneous. Friends, you're becoming free. Mukti is instantaneous. The reality of the self is free. And freedom is not to be attained, it is to be discovered, it is to be realized. ओपन सीक्रेट से हमने कोशिश की है आपको इसको समझाने की। आशा करता हूँ आप इसको पकड़ पाएंगे, इस मार्ग पे आगे चल पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, लेकिन हमारे जनक जी कहाँ मानने वाले थे दोस्तों। मैंने बताया ना, वो तो राजा थे, महामानव थे, अत्यंत ज्ञान जो उस समय फैला हुआ था। दर्शन तो आ ही चुके थे दोस्तों, और हमारी व्यथा दोस्तों उससे भी आगे की है। इतने इवॉल्व हो चुके हैं, इतने कुछ में हम लोग व्यस्त हैं कि सच तो हमारा बहुत 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 दूर चला गया है। मुझे तो उम्मीद सिर्फ भारत के प्रोफेशनल्स से है, क्योंकि हमारी हेरिटेज में कुछ अवेलेबल तो है। तो जनक जी क्या कह रहे हैं अष्टावक्र को, हे भगवान, न्यायिक क्या, और भी बहुत सारे यहाँ पे आत्मा को कर्ता मानते हैं, भोक्ता और सुख दुख आदि का धर्मों वाला मानते हैं। बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों इस जस्टार्ट के एक पहलू को एक बार भी देखना। पुरुष यही तो कहता है कि मैं करता हूँ, यज्ञ तो मैं करता हूँ। यज्ञ मतलब सैक्रिफाइसेस, मतलब वट एवर यू डू, अर्थात यज्ञादिक कर्मों का कर्ता और उनके फलों का भोक्ता भी अपने को ही मानता है। तब फिर यह जीवात्मा अकर्ता और अभोक्ता होकर मुक्त कैसे हो सकता है? दोस्तों, आई हैव टोल्ड सो मेनी टाइम्स, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव दैट मैं तो बहुत स्लो हूँ, मेरी समझ भी बहुत स्लो है दोस्तों। आई एम वेरी श्योर दैट यू ऑल will be able to understand and further your travels in the life better than me, more than me. बस मेरे लिए तो दोस्तों यही खुशी का विषय है। अष्टावक्र जी आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को, कहते हैं, न त्वं विप्रादिकः वर्णः न आश्रमी न अक्षगोचरः असंगः असि निराकारः विश्व साक्षी सुखी भव। फ्रेंड्स, अभी तक तो अष्टावक्र वाज एक्सप्लेनिंग रिगार्डिंग
man's material contents, विषय, objects. That is not you. आप वो नहीं हो, आप ये पंचभूत नहीं हो. अब इस वर्स से, in this verse, अष्टवक्र touches man's functional aspects. इसको हम दोस्तों अब अगले वीडियो में लेके चलेंगे. Thank you very much. Remember friends, mukti, freedom is not to be attained. It is to be discovered. It is to be realized. उसी पल अधुनैव ऐसे ही होती है मुक्ति. I am very sure you would have liked the explanations of Open Secret on these deep verses of Ashtavakra ji. If so, please give this video a like, a thumbs up, and please share it with your important contacts. Yes, in the process, it will increase our viewership. Please help us in that aspect. Thank you very much, friends. मैं अपने बचपन के गाँव की प्रेयर के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब हैं तेरी आत्मा. May God bless us all. Thanks friends.